Hello everyone and welcome to our channel Mathematics Kolyu. Hope you all are doing great. So let's see what is the question for today in this 30 days 30 questions JEE Advanced series. Question क्या दिया है? Suppose that we have 4 boxes ABCD. The contents of white, red, red and black balls in them are as shown in the table. So table मैं आपको बना के दूंगी अभी. So जो table हमें दी गई है वो कुछ इस तरह है. This is box, white, red, black. Now we have 4 boxes, A, B, C, D. We have 6, 4, 8, and this is empty. 3, 6, 2, 1, 0, 0. This is empty and empty. And ये basically box A में all 3 colored balls है. Box B and C में only white and red colored balls है. Box D right now empty है. So this is already given in the question. This is the information provided about the content of different colored balls in 3 boxes or in fact 4 boxes. ठीक है? तो ये table हमें दिया हुआ है. अब जरा question read करते हैं. The content of the white, red, black balls in them are as shown in the table. Now a ball is chosen at random from the box A. जो very first step हमारे पास आ रहा है वो ये है कि आपने एक बॉल को चूज किया फ्रॉम द बॉक्स ए. एक काम करते हैं, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सारी इंफॉर्मेशन को लिखना. वैसे भी जब बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट एज यू कीप रीडिंग और एज यू प्रोसीड इन द क्वेश्चन. जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जा रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन लिखते चल जाओ. जैसे अभी तक हमने ये देखा है कि अ बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स ए. इनका ठीक है एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है. फ्रॉम द बैग ए यू डोंट इवन हैव टू सिलेक्ट द बैग ए. इट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. इट इज इन योर हैंड एंड यू आर टेकिंग आउट वन बॉल एट रैंडम. हो सकता है वो व्हाइट बॉल हो या रेड हो या फिर ब्लैक बॉल हो. राइट ठीक है. तो अभी तक हमने एक बॉल फ्रॉम द बॉक्स ए ड्रॉ कर लिया. द क्वेश्चन सेज इफ द बॉल चोजन फ्रॉम ए इज व्हाइट then a ball is chosen randomly from B and placed in box D. Box D में रखना नहीं है, आपको सिर्फ चूज करना है because whatever you are choosing you are going to keep it in box D. अगर व्हाइट बॉल ड्रॉ की गई है तो now you have bag B. ठीक है, अभी आपके पास बैग B आ जाएगा हाथ में and from that bag B you are going to take out a ball. Because बैग B में रेड बॉल नहीं, ब्लैक बॉल नहीं है, ये हमने नोटिस किया था, इसलिए now the second drawn ball will be either white or it is going to be red. Right? ठीक है, तो हमने थर्ड लाइन तक इंफॉर्मेशन पढ़ा, उसे ट्री डायग्राम में बना दिया. इफ द बॉल चोजन फ्रॉम ए इज रेड, अब दे आर सेइंग कि अगर आपने एक रेड बॉल को ड्रॉ किया है देन अ बॉल इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द बैग सी एंड प्लेस्ड इन बॉक्स डी. तो अगर रेड बॉल ड्रॉ हुई है तो अब आपके हाथ में कौन सा बैग आ जाएगा? बैग सी. ठीक है, अब आपके हाथ में बैग सी आ जाएगा. अब बैग सी आ गया, इसका मतलब अगेन यू आर टेकिंग आउट अ बॉल which will be either white or it is going to be red, which you are going to keep in box D, जो आप box D में रख दोगे. ठीक है, और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन. If the ball chosen from A is black, then one of the boxes B or C is chosen at random and a ball is drawn at random from it and placed in box D. यानी अब आपके पास क्या आ गया? अगर ब्लैक बॉल ड्रॉ हुई है तो नेक्स्ट स्टेप होगा बैग को सिलेक्ट करना, which can be either bag B or bag C, and then you are taking out a ball which will be either white or red. Right? So here is the tree that we have completed and now we are going to read the question as well. तो अभी तक तो सारा इंफॉर्मेशन था जिससे मैंने ट्री बना दिया है. Regarding the probabilities, yes, वो हम लोग लिख सकते हैं. एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं क्या क्या चाहिए. One of the box B or C is chosen at random and ball is drawn at random from it and placed in box D. The question says find the probability that the ball placed in box D is red. And the second part, if the ball kept in box D was white, यानी ये तो conditional probability आ गई, then find probability that the first drawn ball from the box is red. यानी हम लोग सीधे सीधे interpret कर सकते हैं कि the first part of the question is nothing but a total probability theorem question, right? Here we have to calculate total probability. क्यों? क्योंकि red ball box D में डालना बहुत सारे events के साथ associated है. It might be possible कि bag A से हमने red ball को choose किया था in the very first round, या हमने व्हाइट को चूज किया था और या हमने ब्लैक को चूज किया था. तो इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटीज के साथ मुझे रेड बॉल को बैग डी में ट्रांसफर करने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा. और वी कैन से दैट वी हैव टू यूज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम टू गेट द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट.
And for the second part, it is nothing but conditional, और वो भी reverse conditional है. रिवर्स कंडीशनल का मतलब कि सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि अगर बैग ए से रेड बॉल ड्रॉ की गई है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी चूजिंग अ रेड बॉल और यू विल बी पुटिंग अ रेड बॉल इन बॉक्स डी. ऐसा नहीं पूछा गया है, वो रिवर्स पूछ रहे हैं कि अगर व्हाइट बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बैग डी then what is the probability that the ball drawn from box A is red, right? तो उल्टा क्वेश्चन है, कंडीशनल है, रिवर्स है, तो बेस थ्योरम. बट ट्री डायग्राम हम बना चुके हैं तो सॉल्व करना दोनों ही पार्ट्स को बहुत सिंपल है. स्टोरी काफी बड़ा था मगर सोल्यूशन पार्ट इज वेरी सिंपल. क्या किया हमने, ट्री बना दिया और इसीलिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा. अगर आप इसे नहीं बनाओगे सारे ट्री को तो यू विल जस्ट गेट कंफ्यूज कि क्या क्या केसेस लेने हैं, कौन कौन से केसेस हमने मिस कर दिए. ठीक है, क्या चाहते हैं, इन द फर्स्ट पार्ट दे वांट मी टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल और द बॉल व्हिच हैज बीन प्लेस्ड इन बॉक्स डी इज रेड. तो रेड बॉल कब आपने उसमें ट्रांसफर करी होगी, इन केसेस में, राइट? तो नाउ मुझे ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी. आई एम गोइंग टू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटीज नाउ. सो फ्रॉम द बैग ए बॉक्स, बैग ए या फिर बॉक्स ए, आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एक बॉल को ड्रॉ किया विच कैन बी व्हाइट. सो हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर इन द बैग? यू कैन सी दैट व्हाइट बैग ए में टोटल 10 बॉल्स हैं. आउट ऑफ इट 6 आर व्हाइट, 3 आर रेड, 1 इज ब्लैक. ठीक है, चलिए लिख लेते हैं. तो यहाँ पे आएगा ये 6/10. रेड के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/10, ब्लैक के लिए हो जाएगा 1/10. व्हाइट बॉल ड्रॉ की है तो अभी बैग बी हाथ में आएगा एंड यू विल बी टेकिंग आउट अ बॉल विच कैन बी व्हाइट विथ प्रोबेबिलिटी 4/10. तो बैग बी में भी 10 बॉल्स हैं और 4 व्हाइट और 6 रेड उसमें लिखी हुई है. ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड सिचुएशन कि इन द वेरी फर्स्ट राउंड रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन. तो अब आपके हाथ में है बैग सी. अब बैग सी है तो उसमें भी 10 बॉल्स हैं, 8 व्हाइट हैं और 2 रेड हैं. सो अकॉर्डिंगली आई हैव रिटन द प्रोबेबिलिटीज. नाउ कमिंग टू द थर्ड सिचुएशन, जब आपने एक ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया. ब्लैक बॉल ड्रॉ करने क्या दिया, जस्ट चूजिंग वन बैग, जो कि ब्लैक भी हो सकता है और सॉरी जो कि बैग बी भी हो सकता है और बैग सी भी हो सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी. सो 1/2. मगर बी बैग है तो उससे व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/10. रेड बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 6/10. और अगर सी बैग है तो फिर यही प्रोबेबिलिटीज बन जाती हैं 8/10, 2/10. देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि अ बॉल चोजन फ्रॉम ए, द फर्स्ट स्टेप सेज दैट अ बॉल इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, है ना. आपने उस बॉल को चूज तो किया है मगर यू आर नॉट पुटिंग इट इन एनी बॉक्स. यार बॉक्स बी या बॉक्स सी में आप उसे नहीं डाल रहे हो, करेक्ट, नहीं डाल रहे हो. तो इसीलिए हमने कंटेंट भी चेंज नहीं किया फॉर द बैग बी एंड द बैग सी. हाँ, बट जब आप बैग बी या सी से कोई बॉल ड्रॉ करते हो तो आप उसे बैग डी में जरूर पुट कर रहे हो, राइट. सो बैग ए का काम सिर्फ इतना है कि वो डिसाइड करेगा कि इन द सेकेंड राउंड विच बैग इज टू बी सिलेक्टेड, बी लेना है या सी लेना है. Accordingly, the procedure, we can say the experiment will continue. अभी हमारा ट्री टोटली कंप्लीट है तो लेट अस कंप्लीट द कैलकुलेशन पार्ट. व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? द फर्स्ट पार्ट सेज फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग अ रेड बॉल इनटू बैग डी. क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी के लिए देखो ये मैंने एरोज बनाए हैं, हम इन चारों का सम लिखने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ब्रांच कैसे लिखोगे? यू विल स्टार्ट विद 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/10, करेक्ट. प्लस सेकेंड केस क्या आ जाएगा? सेकेंड केस है ये वाला ब्रांच, तो इस ब्रांच के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं 3/10 इंटू 2/10. कमिंग टू द थर्ड ब्रांच विच विल बी 1/10 इंटू 1/2 इंटू 6/10. एंड देन कमिंग टू द लास्ट ब्रांच विच सेज दैट, अब हमारे पास लास्ट वाली ब्रांच कहती है 1/10 इंटू 1/2 इंटू 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 2/10, राइट. सो ये हमारे पास आ रहे हैं केसेस. अब ये केसेस आ रहे हैं, इन सबको ऐड करके हमें आंसर निकालना है. तो व्हेन यू ऐड देम ऑल टुगेदर अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 23/50. सो कैलकुलेशन पार्ट आप देख सकते हो, 23/50 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट. बट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट व्हिच सेज दैट कि बेस थ्योरम है. बेस थ्योरम है इफ द बॉल केप्ट इन बॉक्स डी वाज व्हाइट मींस सैंपल स्पेस में हमें 1 2 3 and 4 cases दिए हुए हैं. What is the probability that the first drawn ball from the box A is red?
क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जो पहली ड्रॉ की गई बॉल है दैट इज रेड. सो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड का मतलब कौन सा फेवरेबल केस आ रहा है? ये रहा फेवरेबल केस. एंड दिस इज गोइंग टू मेक द न्यूमरेटर, द रिमेनिंग 4 इज गोइंग टू मेक द डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को चलती हूँ. सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए हमने लिखना है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का मतलब क्या होगा कि या तो फर्स्ट राउंड में व्हाइट बॉल हैज बीन ड्रॉन, then you have taken the bag B and you are taking out a white ball from it. White ball को draw करने का probability है 4/10, right? You are putting it in bag D. So ये हुआ एक term. Second term है कि हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपने बैग A से रेड बॉल को ड्रॉ किया. अभी रेड बॉल ड्रॉ किया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैग C से अब आपको एक बॉल को ड्रॉ करना होगा. तो बैग C से एक बॉल व्हाइट ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होगी 8/10. थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि मे बी ब्लैक बॉल हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द बैग ए. अब क्योंकि बैग ए से बॉल ब्लैक ड्रॉ की गई है इसीलिए अब आप या तो चूज करोगे बैग बी को एंड व्हाइट बॉल विल बी ड्रॉन, या फिर आप चूज करेंगे बैग सी को एंड यू विल बी टेकिंग आउट अ व्हाइट बॉल, राइट. सो ये तीन सिचुएशन, ये चार सिचुएशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करती है सैंपल स्पेस कि व्हाइट बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू बैग डी. बट नाउ व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर क्या लिखेंगे? तो न्यूमरेटर लिखने के लिए उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड. फर्स्ट ड्रॉन बॉल रेड का मतलब ये जो ग्रीन से मैंने मार्क करके रखा है, दिस इज गोइंग टू मेक द फेवरेबल वाला केस. सो न्यूमरेटर में वी आर गोइंग टू राइट 3/10 multiplied by 8/10. So this is what you need to complete the calculation part. 10 into 10 ko if you want you can cancel from everywhere, from the numerator and the denominator wala terms, right? You can club them together now and you can solve it. So answer finally aapke paas aa jayega 4/9. So I have given you the answer so that you can confirm your answer, whether you are getting the correct answer or not, whether you are getting the calculation part done by you correct or not. ठीक है, तो आप इसे complete कर लीजिए calculation part and you will get this answer. So see, the story was too long, right? बहुत बड़ा story यानी बहुत सारा information दिया गया था. But regarding the solution part, I just made the tree and after that first part भी solve कर लिया. Second part also we have completed and the calculation part is also not very lengthy. So IT also framed this type of question. ऐसे questions वो बनाता रहता है. आप recently भी check करोगे तो आपको इस तरह के questions मिलेंगे जिसमें tree बनाने के बाद it becomes very clear कि हमें कौन-कौन से cases लेने हैं. वो सारे cases लिखकर calculation इसी type का मिलेगा आपको. ठीक है, इसी type की calculation रहती है usually. Calculation करिए और answer निकाल दीजिए. तो base theorem का question कभी भी आपको feel आ जाए, tree diagram is the best approach to handle such type of problems. ठीक है ना? So thank you for engaging with the question. If you found the question interesting, then please hit the like button. Subscribe for more updates. Stay tuned for the next video. Until then, keep exploring and learning.